topic of this session is waste recycling in sustainable agriculture. And for this, we have an expert who is Dr. Dinesh Sharma, a senior scientist from IARI Pusa, from Division of Environmental Sciences. He has been working on waste recycling, bioremediation of contaminated soil and water, and impact of agriculture practices on ecosystem services. And we have with us Dr. Jaswant Sokhi, who is the coordinator of this program, that is awareness course in environment. So on this particular topic, that is waste recycling in sustainable agriculture, Dr. Dinesh, he would be throwing the light and he would be discussing exactly what is the waste and how it can be recycled for achieving the sustainability in the agriculture. So Dr. Dinesh, first of all, I would just like you to tell our viewers and our students that what is waste. Waste is a natural byproduct of any process on earth and cannot be avoided. Any substances which constitute a scrap material or an effluent or other unwanted surplus substance arising from the application of any process. Or we can say that any substance or article which requires to be disposed of as being broken, worn out, contaminated or otherwise spoiled. Or we can say that waste is a misplaced resource, we can say. How much waste we are generating every day? Average per capita garbage generation per day is 0.5 to 0.75 kilogram. And Delhi generates roughly 6,000 tons of municipal solid waste per day. And this figure has gone up to roughly 6.8 tons MSW per day. And MCD lifts between 750 to 1,000 tons per day. Spend rupees 6.7 to 9 lakhs per day to collect and transport this waste. It means that rupees 900 per ton they are investing. India generates 80,000 tons of garbage per day, which means lining up a truck full of garbage bumper to bumper for 300 kilometers. This is a huge magnitude of waste we are generating, and this is a huge problem which we are facing. When we look the water use in country, say for example in 1990 for irrigation purpose we were using 460 billion cubic meter. It constitute roughly 88.6%, and when we are going for in 2050 the magnitude will be lesser, than 70.9%. You can say that since our economy is growing, our industrialization is growing, so there will be a competition between water use for agriculture and water use for industry and urban sector. So Dr. Dinesh, I just wanted to ask that from your data we can see that water availability, it would be less in the coming years. So what would be the quality is also be deteriorated and the quantity would be also less. So what would be the impact on the irrigation or the agriculture? Actually, due to the climatic variations, the climate change scenario, and the competition from industry, urbanization, there will be less water for agriculture. So there are going to be a very tough time for agriculture sector, because the quality as well as quantity of water for agriculture sector is going to reduce from 88% in 1990 to less than 70.90% in 2050. So this is a huge challenge for the agriculture community we are facing. जैसा कि मैंने बताया कि किस तरह से जो क्लाइमेट चेंज सिनेरियो है, क्लाइमेट चेंज के जो सिनेरियो है मीन्स के जो रेनफॉल में कमी आएगी, रेनफॉल का जो ड्यूरेशन है उसमें कमी आएगी. जैसे अभी हमने देखा, इस वर्ष देखा कि जून जुलाई में बारिश नहीं हुई, लेकिन सितंबर में बारिश हुई. लेकिन वो किसानों के लिए इतनी फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि जो धान की फसल की बुवाई है और भी फसलों की जो खरीफ की बुवाई थी वो उससे काफ़ी एरिया प्रभावित हुआ. इसी तरह आने वाले समय में हम देखेंगे कि किस तरह से जो जलवायु परिवर्तन के जो खतरे हैं वो हमारी कृषि को और ज़्यादा प्रभावित करेंगे. तो ऐसे सिनेरियो हम देखते हैं कि क्योंकि हमारा औद्योगिकरण बढ़ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है, तो उनके लिए हमको जल की मांग ज़्यादा होगी. तो इसका जो प्रतिकूल प्रभाव हमारी कृषि पर पड़ेगा कि न केवल जल की गुणवत्ता बल्कि जल की मात्रा में भी कमी आएगी. तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है आने वाले समय के लिए. और जैसा कि इस हमारे टॉपिक से स्पष्ट है कि हम लोग वेस्ट रिसाइकलिंग की बात करते हैं, और हमारे देश में जो म्यूनिसिपल सीवेज वाटर है या म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है, अगर हम देखें क्लास 1 एंड क्लास 2 सिटीज़ को हम देखें तो 26,254 मिलियन लीटर्स हम प्रतिदिन ये सीवेज वाटर जनरेट कर रहे हैं. इतनी बड़ी क्वांटिटी, और उसमें से लगभग 15 से 30% वाटर को ही हम ट्रीट कर पाते हैं, और बाकी जो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर है, सीवेज वाटर है, उसको हम नहीं ट्रीट कर पाते. तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है. And wastewater treatment capacity of India is about 7,044 million liters per day. So this is roughly 10 to 15% of the total sewage which we are generating. और अगर हम देखें किस तरह से जो हमारे उद्योग धंधे हैं वो जल का समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जितनी मात्रा में उनको जल चाहिए वो उससे ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि
प्रॉपर प्राइसिंग नहीं है और वेस्ट वाटर इतनी मात्रा में जनरेट हो रहा है। अगर हम देखें थर्मल पावर प्लांट्स, वो टोटल वाटर का 87% रफली यूज़ कर रहे हैं। इंजीनियरिंग जो सेक्टर है वो 5% यूज़ कर रहा है। पल्प एंड पेपर मिल, टेक्सटाइल, शुगर डिस्टरी, वो रफली 2 to 1% और टोटल वाटर दे आर यूजिंग, और इसका बहुत बड़ी मात्रा में वो वेस्ट वाटर जनरेट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इतनी बड़ी मात्रा में हम वेस्ट वाटर जनरेट कर रहे हैं, हमारे पास जल की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में ही कमी आ रही है। तो हमारे पास एक विकल्प व्यवस्था है कि क्या हम ये जो वेस्ट वाटर है इसको हम कृषि में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि क्या हम इस वाटर को कृषि में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी जो चल रहा है उसमें हम इरिगेशन में यूज़ कर रहे हैं, या लोगों के मन में कुछ ऐसा है कि हम एग्रीकल्चर में वेस्ट वाटर को नहीं यूज़ कर? ऐसा है, हम हर इंडस्ट्री के वेस्ट वाटर को एग्रीकल्चर में रिसाइकिल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको हम एग्रो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जैसे शुगर इंडस्ट्री है, डिस्टिलरी है, पेपर मिल इंडस्ट्री है, डेयरी है, टैनरी भी टू सम एक्सटेंट है, फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज़ हैं, फ्लोर मिल हैं, फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो वेस्ट है उनके सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को हम कुछ हद तक रिसाइकिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको रिसाइकिल करना निरापद है, इसका कोई थ्रेट्स नहीं है, उनके भी थ्रेट्स हैं। उसको हम कैसे निपटेंगे वो मैं आगे इसमें चर्चा करूँगा। एक क्वेश्चन मैं भी पूछ लेती हूँ आपसे जी। ये जो इतने सारे इंडस्ट्रीज़ अभी आपने बताए हैं, तो ज़्यादातर ये लोग इंडस्ट्रीज़ कैसे अपने वेस्ट को मैनेज करती हैं? क्या वो सीधा ही इसको सीवेज के तौर पे डिस्कार्ड कर देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत सरकार के मानकों के अनुसार वो इसका निस्तारण करते हैं। हाँ जी। जैसा कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग नॉर्म्स बनाए हैं। डिस्टरी के लिए अलग है, पेपर मिल के लिए अलग है, शुगर इंडस्ट्री के लिए अलग है, हाँ जी। डेयरी इंडस्ट्री के लिए अलग अलग मानक निर्धारित किए गए हैं। BOD, COD, एफ्लुएंट का कितना मात्रा होना चाहिए, कितना BOD होना चाहिए। तो हर इंडस्ट्री का एक अलग अलग मानक है, उसके आधार पे ही वो वेस्ट को डिस्पोज करते हैं। अच्छा, मतलब पहले कि whatever waste is generated, it is first treated and then Treated. it is later on discarded as a waste. एज ए वेस्ट। I think, as you said, there is immense potential to utilize this waste for earning carbon credits also. That's a different dimension, but Yes, all yes. these industries are already Yes. trying to add to their income. So that is perhaps a little deviation from the topic. Yes. I just drew your attention on that. Yes. But एक्चुअली अब इसी जैसा आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि छत्तीसगढ़ में एक राइस हस्क होता है। हाँ जी। पूरे भारत में लगभग 23 मिलियन टन राइस हस्क का जनरेशन होता है। हाँ हाँ। वहाँ पे एक ऐसा प्लांट लगा है जो राइस हस्क से एनर्जी क्रिएट कर रहा Generate कर रहा है। है। उस एनर्जी क्रिएशन में कार्बन क्रेडिट लेने के लिए यूनिक चीज़ क्या है कि आपको एक ऐसा यूनिक सिस्टम चाहिए जिसकी बेस पे कि आप परंपरागत ढंग से हटके करें। हाँ जी। क्योंकि जो बिजली बनाने का जो काम है वो कोल बेस्ड फायर हाँ, पावर बिल्कुल। प्लांट से होता है। बिल्कुल। उसमें आपको पता होगा कि कार्बन एमिशन होता है, उससे कार्बन क्रेडिट हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम राइस हस्क को इनोवेट करके हम एनर्जी बना रहे हैं, तो दे आर क्लेमिंग कार्बन क्रेडिट फॉर दैट। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिस पे हम कार्बन क्रेडिट कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे वर्किंग एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे कार्बन क्रेडिट की मांग की जा रही है। जी, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि मैंने बताया कि जो सीवेज वाटर है उसके अपने फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। जैसा कि सीवेज है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हैं, लेकिन होता क्या है कि जो सीवेज है कुछ इंडस्ट्रियां अपने एफ्लुएंट को ढंग से ट्रीट नहीं करती हैं और उसको जनरल जो हमारा जो ड्रेन है उसमें मिक्स कर देते हैं। तो उसकी वजह से उस जो सीवेज में बहुत सारी हैवी मेटल्स भी आती हैं, कैडमियम, क्रोमियम, जिंक, आर्सेनिक, निकल, क्रोमियम इत्यादि। उसकी वजह से जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ का जो सीवेज है उसमें भारी धातु की मात्रा अधिक होती है। तो ऐसे सीवेज को अगर हम कृषि में इस्तेमाल करते हैं तो वो खतरनाक हो सकता है। जैसा कि आप देखेंगे जो पेरी अर्बन एग्रीकल्चर है, जिसको हम उपनगरीय कृषि भी कहते हैं, दिल्ली के आसपास का आप क्षेत्र देखें, गाज़ियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, ये जो कोयम्बटूर के आसपास जितने भी जो पेरी अर्बन सेंटर्स हैं वहाँ पे क्या है, किसान काफ़ी लंबे समय से सीवेज को खेती में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, बहुत सौयों साल पहले से सीवेज को कृषि में इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन असली दिक्कत कहाँ आती है, जब हम सीवेज को और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से चैनल को हम सेपरेट नहीं करते हैं और इंडस्ट्री भी उसमें अपना एफ्लुएंट या वेस्ट वाटर डंप कर देती है। उसकी वजह से सीवेज में बहुत सारे मेटल्स का कंटेमिनेशन हो जाता है। तो ये ऐसे पहलू हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसी की वजह से अभी आपने कुछ समय पहले न्यूज़पेपर्स में भी आया था कि जो हम सब्जियां खा रहे हैं, वो मैं आगे क्लिपिंग्स में भी दिखाऊंगा कि जो सब्जियां खा रहे हैं, जो हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स ले रहे हैं, उसमें काफ़ी मात्रा में हैवी मेटल्स आ रहे हैं। उसके कारण यही है कि जो पेरी अर्बन एरिया के जो फार्मर हैं, जहाँ पे एफ्लुएंट को ढंग से डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा रहा है, और क्योंकि मैंने बताया कि पानी अभी एक पेपर में आया था कि किस तरह से
नॉर्थ इंडिया में हर वर्ष 1 फुट पानी नीचे भूमिगत जल का स्तर जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हर बार किसान को अपने ट्यूबवेल को बोरिंग नीचे करानी पड़ेगी। तो इसका एक किसान पर एक अतिरिक्त दबाव पड़ता है। तो उसके सामने विकल्प क्या है, अगर बारिश नहीं होती है, अगर उसके पास से कोई ड्रेन जा रहा है, चाहे वो सीवेज का ड्रेन है या कोई इंडस्ट्री का ड्रेन है, तो वो कई बार ऐसा प्रैक्टिस देखी गई है आसपास के शहरी क्षेत्रों में, वो वहाँ पे पंप लगाते हैं, उसी से ही वो सिंचाई करते हैं। अगर वो देखेंगे परोक्ष रूप से वो देखेंगे तो सब्जी वो फसल बहुत स्वस्थ दिखाई देती है, लेकिन उनको नहीं पता चलता कि उसमें कितनी मात्रा में हैवी मेटल्स आ रहा है। ऐसी बहुत सारी, जैसे जमुना पुस्ता पे लोग यमुना वाटर से भी कई बार करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स हुए हैं जहाँ पे काफ़ी मात्रा में हैवी मेटल आया है और उसके मानव पर बड़े प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड्स के माध्यम से देखेंगे कितनी मात्रा में हम लोग जो वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है 27.4 मिलियन टन्स पर डे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्युनिसिपल लिक्विड वेस्ट अगर हम फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास सिटीज़ की बात करें तो 12,145 मिलियन लीटर्स पर डे। डिस्टलरी, जो मैंने बताया कि डिस्टलरी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, उससे भी हम लगभग 4 बिलियन लीटर्स एफुलेंट का जनरेट होता है। प्रेस मड 9 मिलियन टन्स पर डे। प्रेस मड इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री, आई विल कम टू दिस लेटर ऑन। एंड फूड प्रोसेसिंग वेस्ट 4.5 मिलियन टन्स पर ईयर। एंड विलो डस्ट 30,000 टन्स पर ईयर। डेयरी इंडस्ट्री वेस्ट 50 to 60 million liters per day. This is a huge amount of waste we are generating. If we are just discarding this waste, so it will have a lot of environmental impact also. But when we are going to recycle through environmentally sustainable way, it can serve as a great resource for agriculture sector as well. So what is the basic difference between this chemical fertilizer and the distillery effluents? When you are speaking about this, what is the basic difference? Actually, केमिकल फर्टिलाइज़र मीन्स यूरिया, DAP, इसमें क्या है एक ही अवयव होगा। लेकिन जो डिस्टलरी है, जैसा मैं आगे भी बताऊंगा, डिस्टलरी क्या है, शुगर इंडस्ट्री से अगर जो शुगर केन है, हज़ारों हेक्टेयर में शुगर केन उगाया जाता है। शुगर केन चीनी मिल में जाता है। चीनी मिल में 2 प्रोडक्ट बनते हैं, मोलेसिस इज अ बाई प्रोडक्ट जिसको हम शीरा बोलते हैं, प्रेस मड इज अनदर बाई प्रोडक्ट, एंड शुगर। जैसा कि मैं बता रहा था कि चीनी मिल में गन्ना जाता है, तो चीनी मिल में चीनी के साथ साथ बेगास, प्रेस मड और मोलासेस, दीज आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री। एंड मोलासेस इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर डिस्टलरी इंडस्ट्री। पहले क्या होता था, प्रेस मड को ऐसे ही डिस्पोज कर देते फैक्ट्री मालिक। लेकिन अभी क्या है कि क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, सल्फर, इतने न्यूट्रिएंट्स हैं कि इसको फेंकना बुद्धिमत्ता नहीं होगी। तो अभी काफ़ी समय से इसको कंपोस्ट के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है एफुलेंट के साथ। So means these can be used. They are the useful thing. Yes, these are the useful thing. इसको अगर हम अच्छी तरह से कृषि में इस्तेमाल करते हैं तो इससे न केवल हम मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं, बल्कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से भी बचा सकते हैं। जैसा कि मैं अपने उसमें डिस्कस कर रहा था कि किस प्रकार शुगर केन से शुगर बनता है, बेगा से, प्रेस मड और मोलासेस, ये इसके बाई प्रोडक्ट हैं। जैसे आप फ्लो चार्ट में देख रहे हैं, प्रेस मड जिसको पहले कोई कीमत नहीं दी जाती थी, लेकिन अब क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्टलरीज को 0 डिस्चार्ज नॉर्म के लिए कहा है कि अब वो कोई भी एफुलेंट अपनी फैक्ट्री से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो अब ये जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उनके लिए बाध्यता है कि उनको एफुलेंट बाहर नहीं निकालना है। तो अभी वो क्या कर रहे हैं कि प्रेस मड को डिस्टलरी एफुलेंट के साथ कंपोस्टिंग कर रहे हैं। प्रेस मड और डिस्टलरी एफुलेंट को मिलाकर वो एक कंपोस्टिंग बना रहे हैं, और उस कंपोस्ट को वो ना केवल भारत में इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि बहुत सारे कंट्रीज़ में भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे टी स्टेट्स हैं और भी बहुत सारे जहाँ पे प्लांटेशंस हैं, वहाँ पे हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और मोलासिस से, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोलासिस से हम अल्कोहल बनता है, CO2, इवन CO2 को भी जो कोक वाली फैक्ट्रियाँ हैं, जो कोक की कंपनी है, वो CO2 को खरीद रहे हैं। तो ये एक आज की, जैसे मैंने बताया ना कि वेस्ट आर मिसप्लेस्ड रिसोर्सेज, हम उसके बारे में नहीं जान रहे हैं, उसको वैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज वेस्ट भी एक बहुत ही लाभदायक, बहुत ही इकोनॉमिकली वायबल अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, जब हम मोलेसिस से अल्कोहल बनाते हैं, 1 लीटर अल्कोहल बनाने में 15 लीटर वेस्ट वाटर जनरेट होता है। 1 लीटर अल्कोहल बनाने में लगभग 15 लीटर वेस्ट वाटर जनरेट होता है। दिस ए ह्यूज अमाउंट। हम लगभग 2 to 3 बिलियन लीटर अल्कोहल वी आर प्रोड्यूसिंग। सो यू कैन इमेजिन हाउ मच वेस्ट वाटर वी आर जनरेटिंग, एंड दिस वेस्ट वाटर इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। से फॉर एग्जांपल, हमने इसमें क्या किया कि हमने देखा कि कितना, अभी हम देखेंगे इंडिया में लगभग 300 के आसपास डिस्टलरियाँ हैं जिनको हम आसवनी बोलते हैं, और उनसे हम देखें कि लगभग 40 अरब लीटर एफुलेंट हर साल हम जनरेट करते हैं। इसमें हमने देखा कि क्योंकि इसमें एफुलेंट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर है, हमने जो एफुलेंट में ये जो पोषक तत्व हैं उनका हमने देखा कीमत कितनी हो सकती है, तो ये 300 करोड़ से ज़्यादा की कीमत आई। उसी तरह से जो एफुलेंट में जो माइनर, जो इनको हम बोलते हैं माइक्रो
न्यूट्रिएंट जैसे जिंक है, कॉपर है, ये भी इसकी हमने कीमत देखा तो लगभग 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की आई। हम पहले क्या करते थे, इन पोषक तत्वों को फेंक देते थे, पानी में डाल देते थे, बहा देते थे, लेकिन हमने देखा कि क्यों ना हम इनको रिसाइकिल करें नेचर में, क्यों ना हम इससे किसानों का यूरिया पर, जो उर्वरकों पर जो उनकी निर्भरता है कम किया जाए और पर्यावरण को भी प्रदूषित होने से बचा जाए। क्योंकि डिस्टिलरी एक बहुत बड़ी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि इसमें बीओडी सीओडी लगभग 50,000 90,000 है। इतनी बीओडी और सीओडी के अगर पानी को हम किसी भी एक्वेटिक बॉडी में डालेंगे, आपने सुना होगा कि बहुत सारी मछलियाँ मर गई पानी में, वो इसलिए मरती हैं क्योंकि बीओडी सीओडी इतना ज़्यादा होता है, जो डेयरी है, टैनरी है, डिस्टिलरी है, इसकी वजह से फिश मोर्टेलिटी होता है। तो अगर हमारे पास कोई चारा नहीं है, अगर हम इसको पानी में डाल दें तो ये सब पर्यावरण दुष्प्रभाव आएंगे हमारे सामने, क्यों ना हम इसको रिसाइकिल करें। इसके अंदर जो पोषक तत्व हैं उनका चक्रण करके न केवल हम पोषक तत्वों का दोहन कर सकते हैं, बल्कि पर्यावरण को भी प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि किस तरह से डिस्टिलरी एफ्लुएंट और जो केमिकल फर्टिलाइजर है क्या डिफरेंस है। जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं उसमें केवल एक ही अवयव पाया जाएगा, चाहे नाइट्रोजन हो या फास्फोरस हो या पोटेशियम हो, लेकिन डिस्टिलरी एफ्लुएंट या डिस्टिलरी वेस्ट, क्योंकि वो एक प्लांट वेस्ट मटेरियल है, उसमें केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस, उसमें एक मिक्सचर है, एक संतुलित हम जिसको बोल सकते हैं, इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, बैलेंस न्यूट्रिएंट हैं, उसमें फास्फोरस है, पोटेशियम है, जिंक है और बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स भी हैं। तो ये अपने आप में एक, और उससे उसमें ऑर्गेनिक कार्बन भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी जो सॉइल है उसमें ऑर्गेनिक कार्बन और की कमी होती जा रही है। जैसा कि हम देखेंगे 1950 में हमारी मृदा में केवल नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी थी, लेकिन धीरे धीरे आज 2000 में आते आते हमारी सॉइल में आयरन, मैंगनीज, जिंक की डेफिशिएंसी इतनी लार्ज स्केल पर है कि हम चाहे उसमें कितना ही यूरिया डाल दें, कितना ही फास्फोरस डाल दें, हमको जो उपज मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जो ऑर्गेनिक कार्बन है हमारी मृदा से, वो ख़त्म होते जा रहे हैं, वो कम होते जा रहे हैं हर साल। तो उसके लिए हमारे पास क्या विकल्प हैं? क्यों ना हम कार्बनिक वेस्ट हैं या ऑर्गेनिक वेस्ट हैं उसको हम अपनी मृदा में वापस डालें, अपने खेतों में दोबारा से डालें। तो उससे न केवल हम जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सकते हैं, बल्कि बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी मृदा में आपूर्ति कर सकते हैं। अभी जो आपने न्यूट्रिएंट्स बताया, मेनली कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका डिप्लीशन जो सॉइल में है और वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं फॉर दिस? जैसे अभी भारत के बहुत सारे हिस्सों में जिंक डेफिशिएंसी है, मैंगनीज डेफिशिएंसी है, कॉपर की डेफिशिएंसी सामने आ रही है, बोरॉन की डेफिशिएंसी सामने आ रही है, नाइट्रोजन तो है ही है। तो ऐसी सॉइल में हम चाहे कितना भी उर्वरक डाल लें, उनसे उनकी भरपाई हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि एकीकृत पोषक प्रबंधन, यानी कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। उसके लिए जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जैसे क्रॉप रेसिड्यूज़ की हम बात करते हैं, क्रॉप रेसिड्यूज़ हमारे देश में लगभग 600 मिलियन टन्स क्रॉप रेसिड्यूज़ हर साल जनरेट होते हैं। तो अगर हम उस 600 मिलियन टन्स को भी रिसाइकिल करें तो काफ़ी हद तक इस समस्या से निजात पा सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। अभी एक नई खेती में एक नई विधा चल रही है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। कंजर्वेशन, हमारे जो पूर्वज थे वो हमेशा से ही कंजर्वेशन एग्रीकल्चर करते थे, लेकिन हमने जो ये जो क्रॉप रेसिड्यूज़ हैं उसको डिकम्पोज करना शुरू कर दिया। जैसे पंजाब के बहुत, हरियाणा में आप जाएंगे राइस के सीज़न में तो लोग रेसिड्यू को बर्न कर देते हैं, क्योंकि उनको जल्दी से अपना खेत तैयार करना होता है। तो जो धान के जो रेसिड्यू हैं, जो चावल का पुआल है हम बोलते हैं उसको, वो उसको जला देते हैं। तो उससे ना केवल वायु प्रदूषण होता है, बल्कि जो पोषक तत्व उस रेसिड्यू में थे वो भी जल के नष्ट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। तो क्यों ना हम, जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट है कि हम जो हमारे रेसिड्यूज़ हैं उनको सॉइल में दोबारा से इनकॉर्पोरेट करें और सॉइल में मिनिमम डिस्टर्बेंस करें, ताकि जो सॉइल हेल्थ को हम इम्प्रूव कर सकें। तो इंडिया की अभी बात कर रहे थे, तो इंडिया में ऐसे कौन से स्टेट्स ज़्यादा हैं जिसमें कि ये जो डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़्यादा दिखता है? ऐसा भी है कि कुछ स्टेट वाइज कुछ स्टडी हुआ? नहीं, स्टेट वाइज स्टडी हुआ है ऐसे तो इंगित करना मुश्किल है, लेकिन हाँ, जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से हैं, और कुछ इवन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में भी न्यूट्रिएंट माइनिंग हो रही है, न्यूट्रिएंट लीचिंग, न्यूट्रिएंट माइनिंग हो रही है। उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। कुछ स्टेट्स अभी भी ऐसी हैं जहाँ की सॉइल फर्टिलिटी या जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का जो डिप्लीशन है वो कम है कंपैरेटिवली। यस, आप बिहार को कहेंगे तो वहाँ पे कम है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर अभी नहीं हो पाया है, तो ये सारे कम हैं। तो जैसा कि हम आसवनीय अवशिष्ट के बारे में बात कर रहे थे, जो डिस्टिलरी एफ्लुएंट है, हम इसको क्यों इस्तेमाल करें खेती में, इससे क्या फ़ायदे हैं? जैसा कि मैंने बताया कि ये कृषि उद्योग आधारित अपशिष्ट है, इसमें कोई विजातीय तत्व नहीं है, सिर्फ इसमें सल्फ़र मिलाते हैं। सल्फ़र भी हमारी खेती के लिए आवश्यक है। और जैसा मैंने बताया कि जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने इसको बहुत बड़ा प्रदूषक माना है, क्योंकि इसमें बीओडी सीओडी बहुत ज़्यादा है।
और इसके साथ साथ इसमें माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट भी हैं। तो अगर हम इसको रिसाइकिल करते हैं तो हम इन पोषक तत्वों को अपनी खेती में दोबारा से चक्रीकरण कर सकते हैं। और इस दिशा में बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारी डिस्टिलरियाँ हैं जहाँ पे फर्टी इरिगेशन का काम चल रहा है। फर्टी इरिगेशन क्या समझते हैं उससे? व्हाट इज फर्टी इरिगेशन? फर्टी इरिगेशन ये है कि किस तरह से हम जो एफुलेंट है जिसमें पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, उनको हम पानी के साथ मिक्स करके डाइल्यूट करके और खेती में उसको सिंचाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसको हम फर्टी इरिगेशन कहते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, चित्र में देख रहे हैं कि किस तरह से जो एफुलेंट है उसको डाइल्यूट करके दूर दूर तक क्षेत्रों में ले जा रहा है, एक चैनल बनाया जा रहा है एफुलेंट का, ताकि दूर दूर तक इसको ले आया जा सके। अगर हम आसमनी अपशिष्ट की बात करें, डिस्टरी एफुलेंट की बात करें, तो हम दो तरीके से इसकी सिंचाई कर सकते हैं। प्री सोन इरिगेशन यानी कि फसल को लगाने से पहले हम सिंचाई कर सकते हैं, और पोस्ट सोन इरिगेशन। जहाँ तक प्री सोन इरिगेशन की बात है, प्री सोन इरिगेशन में हम क्या करते हैं कि जैसे हमारी गेहूं की फसल कट गई, तो जब हमारी फसल कट जाती है तो हम एफुलेंट 100% एफुलेंट को भी एज सच हम उसको इरिगेट कर सकते हैं, और एक हफ्ते बाद उसको हम दोबारा से जुताई करके साफ पानी से सिंचाई करके हम दूसरी फसल को उसको बुवाई कर सकते हैं। तो उससे हमारा क्या हुआ कि जो साफ पानी की बचत हो गई, जो हम ग्राउंड वाटर लगाते। तो जैसा कि हम बताए थे कि फर्टी इरिगेशन में हम क्या करते हैं कि जो प्री सोन इरिगेशन है उसमें हम फसल को बोने से पहले इरिगेशन करते हैं, उसमें हम 100% एफुलेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं डिस्टिलरी एफुलेंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो पोस्ट सोन इरिगेशन है उसमें क्या है, हम खड़ी फसल में इरिगेशन करते हैं। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि इसमें हमको एफुलेंट को लगभग 10 to 20% हम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% हम एफुलेंट दे देंगे तो हमारी फसल सूख जाएगी, मर जाएगी। तो हम पोस्ट सोन इरिगेशन में केवल हम डाइल्यूट करके इरिगेशन की रिकमेंडेशन करते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि हमको कोई भी इरिगेशन के लिए कोई भी वेस्ट वाटर इस्तेमाल बहुत सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। हमको ये देखना है कि उसमें कोई टॉक्सिकेंट्स ना हो, कोई मेटल्स ना हो, कोई पेस्टिसाइड्स ना हो, बहुत सारे ऐसे हार्मफुल इवन माइक्रोब्स वगैरह ना हो, ताकि वो हमारी जो फूड सिक्योरिटी है, जो ग्राउंड वाटर क्वालिटी है, उसको इफेक्ट ना करें। जो हमारी बेसिकली ये पैरामीटर्स जो है, क्या क्राइटेरिया हम लें कि वेस्ट वाटर इरिगेशन के लिए, दिस इज द बेसिक। अगर हम इरिगेशन की बात करते हैं तो 3-4 पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसमें लवण की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, साल्ट ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उसका सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसमें बोरोन्स, क्लोराइड्स वगैरह ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नहीं तो उससे क्या होगा, जो हमारी प्लांट हेल्थ है या क्रॉप हेल्थ है वो नष्ट हो जाएगी, डिटोरेट हो जाएगी। तो ये सारे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। जैसे मैंने बताया, उसमें पैथोजेंस नहीं होने चाहिए, उसमें क्लोराइड्स, साल्ट्स की मात्रा एक निश्चित सीमा के अंतर्गत ही होनी चाहिए, उससे अधिक होगी तो ये बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि हाँ, इस इंडस्ट्री के पानी को हम रिसाइकिल कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, और इसको हम नहीं कर सकते हैं। तो क्या सर इस तरह के सिस्टम्स आर इन प्लेस, जैसे कि सॉइल वगैरह टेस्ट करके हम बताते हैं कि जी हाँ, इस तरह से सीवेज या जो भी कुछ वेस्ट वाटर है, जी हाँ, तो उस तरह से आपके पास मतलब लोग आते होंगे कि ये इस तरह का सिस्टम। हम जैसे कोई भी हमारे पास किसान आता है कि हमको हमारी ये सॉइल है, तो हम उसकी सॉइल की जांच करते हैं, इसमें कितने लवण हैं, कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, कितना पोटेशियम है। तो हम उसको एक सेफ लिमिट बताते हैं कि आपको 1 साल 2 साल तक इरिगेशन करने के बाद सीवेज से, या आपको 2 साल का या 1 साल का आपको गैप पीरियड देना है, जिससे कि साल्ट लीच आउट हो जाएं, या जो भी टॉक्सिकेंट्स हैं वो लीच आउट हो जाएं, जो आपका एक्टिव रूट जोन है उसमें ना आए। तो ये इस तरह की प्रैक्टिस ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होगा कि सॉइल सिकनेस हो जाती है। धीरे धीरे क्या है, साल्ट आपके रूट जोन में ही एक्यूमुलेट हो जाएंगे, मेटल्स रूट जोन में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली उससे जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी पे नुकसान पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें करने से पहले हमको बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती हैं। जैसे आजकल, जैसे मैंने बताया कि पेरी अर्बन एरिया में बहुत सारे किसान इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हैं, और वो सब्जियों की फसल को भी सीवेज से इरिगेट करते हैं। जैसे कॉलीफ्लावर है, ब्रिंजल है, या जो फसल ज़मीन से थोड़ी ही ऊंचाई पर लगती हैं, तो वहाँ पे क्या है कि आपको जब फसल तोड़नी है तो उसके लगभग 15 से 20 दिन पहले सीवेज से इरिगेशन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ई कोलाई है, हेलमिंथीज हैं, एस्केरिस है, उसका कंटेमिनेशन हो सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, ई कोलाई से, एमीबियोसिस के केसेस, बहुत सारे केसेस रिपोर्ट किए गए हैं कि इसकी वजह से हो रहा है कि सीवेज से इरिगेशन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स रिपोर्ट हो रही हैं। बहुत सारे देशों में क्या है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारे गाइडलाइंस हैं, वहाँ पर ये होता है कि भाई आपको 20 दिन पहले सीवेज का इरिगेशन नहीं देना है। लेकिन हर जगह इसको मॉनिटरिंग नहीं किया जा सकता, ये किसानों की नैतिक जिम्मेदारी है, और जो एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उस क्षेत्र में, उनको भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भाई हाँ, वाकई में इन चीज़ों का पालन हो रहा है या नहीं। तो हम देखते हैं कि जो सब्जी की, जैसे पालक है,
आप देखेंगे जो दिल्ली में जो पालक सप्लाई होता है, जो पेरी अर्बन एरिया है जैसे बुलंदशहर है, सिकंदराबाद है, मेरठ है, हापुड़, यहाँ के क्षेत्रों से होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे किसान, जैसा मैंने कहा कि सीवेज से इरिगेशन करते हैं, हमने खुद देखा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ना केवल मेटल्स के बल्कि जो हेलमिंथीज हैं, एस्केरिस है, जो इकोलाई का कंटेमिनेशन होने के, इसकी वजह से एमोबियोसिस और पेट की बहुत सारी बीमारियां होती हैं। सो इट इज़ जस्ट लाइक ए डबल एज्ड सोर्ड। यस यस, कि अगर आप इसको राइट वे में यूज़ कीजिए तो बहुत फ़ायदे की है, अदरवाइज नुकसान भी बहुत दे रहा है। जी जी जी। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि किस तरह से ब्राज़ील, क्योंकि शुगर केन एल्कोहल का एक बहुत विकसित इस दिशा में सबसे आगे है, अग्रणी देश है, वहाँ पे शुगर केन से एल्कोहल बनाने का सबसे ज़्यादा रिवाज है। तो वहाँ पे इस जो वेस्ट वाटर है उसको भी शुगर केन की प्लांटेशन में रिसाइकिल करते हैं, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसमें क्या है कि किस तरह से ये पोस्ट ऑन इरीगेशन का है, वहाँ पे एक टैंकर के द्वारा हम एफ्लुएंट को लेकर आए हैं और किस तरह से फ्रेश वाटर से डाइल्यूट करके इसको हम रिसाइकिल कर रहे हैं फर्टी इरीगेशन के रूप में। ये भी जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें भी किस तरह से फर्टी इरीगेशन जो एक प्रेशर के सहायता से हम एफ्लुएंट को दूर दूर तक फेंकते हैं। शुगर केन ट्रेसेस हैं, इस एफ्लुएंट की वजह से मॉइस्चर मिल जाता है शुगर केन ट्रेसेस को, जो गन्ना कट चुका है उसके अवशेष में कंपोस्टिंग फास्ट हो जाती है। कंपोस्टिंग फास्ट होने के साथ साथ उसमें डिकम्पोजिशन जल्दी होता है और इसमें न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा मिल जाते हैं सॉइल को, तो इसकी फर्टिलिटी बनी रहती है। और जो दूसरा विकल्प है, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे इलाकों में जो किसान हैं वो राइस स्टॉक को जला रहे हैं, और क्योंकि डिस्टलरी को भी जीरो डिस्चार्ज नॉर्म फॉलो करना है, एक अल्टरनेट है कि किस तरह से हम प्रेस मड के साथ कंपोस्टिंग बनाएं, और किस तरह से हम एक जो दूसरा विकल्प है राइस स्ट्रॉ के साथ हम कंपोस्टिंग बनाएं। राइस स्ट्रॉ के साथ कंपोस्टिंग बनाने का फ़ायदा ये है कि हम ना केवल राइस को जलने से बचाते हैं बल्कि जो राइस में जो अवयव हैं उसको भी हम देखते हैं। तो इसमें लगभग 90 से 100 दिन में राइस स्ट्रॉ से हम कंपोस्ट बना सकते हैं। तो हमने इसमें राइस को डिस्टलरी एफ्लुएंट के साथ मिक्स करके कुछ माइक्रोबियल कल्चर्स, माइक्रोबियल स्ट्रेन को मिला करके हमने ये क्वालिटी कंपोस्ट बनाई थी, और ये कई इलाकों में लोकप्रिय हो गई है जहाँ पे चावल उगाया जाता है, जहाँ पे एफ्लुएंट भी अवेलेबल है, तो ये हम आसानी से इसको बना सकते हैं। तो अभी ये जैसे किसान दे आर फेमिलियर, जो फार्मर्स दे आर फेमिलियर विद दिस सिस्टम। हाँ, कुछ प्रगतिशील जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं दे आर डूइंग इट, इट्स वेरी यूजफुल, बिकॉज उसमें आपको एक तो कंपोस्ट बन रहा है, हाई क्वालिटी कंपोस्ट बन रहा है, आप रिसोर्सेज को कंजर्व कर रहे हैं, और एफ्लुएंट का भी रिसाइकलिंग हो रही है। तो कुछ ट्रेनिंग भी आप देते हैं, जैसे अपने वहाँ पे किसानों को जैसे इस तरह से हो सकता है या अपने खेतों में वो कर सकते हैं? हमारे डिवीज़न में हमारा जो पर्यावरण विज्ञान संभाग है, सूक्ष्म जीव संभाग है, वहाँ पर हम किसानों को 7 दिन का ट्रेनिंग, 21 दिन का ट्रेनिंग, 5 दिन का ट्रेनिंग, 2 दिन का ट्रेनिंग, डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं ट्रेनिंग के। हम फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हैं कंपोस्टिंग के ऊपर, वर्मी कंपोस्टिंग के ऊपर, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हम कृषि के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ऑर्गेनिक वेस्ट से हमको डील करने के क्या क्या तरीके हैं। एक तो हम इसको एनिमल फीड के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरा है कि फीड स्टॉक फॉर एनारोबिक डाइजेशन, यानी कि हम इससे बायोगैस भी बना सकते हैं, और तीसरा है कि कंपोस्टिंग। जैसे आप देख रहे हैं चित्र में कि किस तरह से हम कंपोस्टिंग से हम कंपोस्ट बना सकते हैं जो ऑर्गेनिक वेस्ट है। और जो सबसे बड़ी आज की तारीख में जो समस्या है कि मिसमैनेजमेंट ऑफ गार्बेज, इसकी वजह से हमारी सड़कें जाम हो जाती हैं, जगह जगह आप देख सकते हैं रेल की पटरियों पे कूड़े करकट का अंबार लगा हुआ है, सीवर लाइन चौकड हो जाती हैं। और ये जो सबसे बड़ा है कि ये जो वेस्ट कब प्रॉब्लम करता है, व्हेन इट इज़ टू मच और व्हेन इट इज़ टॉक्सिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल। और एक हमारे यहाँ एक सिंड्रोम है NIMBYS, नॉट इन माई बैकयार्ड सिंड्रोम, यानी कि हम चाहते हैं कि कूड़ा हमारे घर में ना रहे, हम बाहर फेंक देते हैं। ये सबसे बड़ी हमारे यहाँ एक ऐसी आदत बन गई है कि हम कूड़े को बाहर, अपना घर तो साफ रखना चाहते हैं लेकिन पड़ोसी का हम उसको डाल देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सिंड्रोम है। इंडिविजुअल लेवल पे हम लोगों को इसके लिए आगे आना पड़ेगा और इसकी दिशा में हमको कार्य करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है गार्बेज मैनेजमेंट में सेग्रीगेशन एट द सोर्स। जहाँ पे कूड़ा बन रहा है या गार्बेज बन रहा है वहाँ पे हम उसको प्रॉपरली सेग्रीगेट करें तो हम 50% प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम कह सकते हैं कि अगर हम वेस्ट को, जितना भी वेस्ट है, चाहे वो एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, सीवेज वेस्ट है, अगर इसको हम प्रॉपरली रिसाइकिल करें, प्रॉपरली मैनेज करें तो ये वेस्ट नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। इससे ना केवल हम पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं बल्कि जो हमारे खेती पर जो रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता है उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है उसके मापदंडों पर हम खरे उतर सकते हैं। तो अभी जो हमारा टाइटल था वो ये था कि वेस्ट रिसाइकलिंग, उसको हमने इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो हाउ वुड वी लिंक दिस वेस्ट रिसाइकलिंग विद द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर?
Actually, sustainability of agriculture is that we are getting the production, but not at the cost of environment. Say for example, since we are recycling the wastewater, we are recycling the organic waste, and so we are saving our environment. At the same time, we are getting better yield. So as far as agriculture is concerned, so we are recycling the waste, but not at the cost of productivity. We are getting more productivity rather sometimes. So this is the concept of sustainability. Sustainability is a concept that the development which meets the needs of present generation without harnessing the need of the future generation. तो इसका मतलब जो भी अभी तक आपने टेक्निक्स अभी बताई हैं जितनी भी वॉट एवर दिस, तो दिस वुड लीड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. जी, सही मायने में उसी के द्वारा हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को हम रियलाइज कर सकते हैं. हाँ नहीं, बहुत अच्छा. ये एक चर्चा बड़ी स्टिमुलेटिंग है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में कैसे अचीव करें. तो हमेशा एग्रीकल्चर को एक तरह से कहिए कि कहा जाता है कि सिंस ह्यूमन सोसाइटी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर, उससे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ना शुरू हुआ. तो फिर इस तरह से मॉडर्न एग्रीकल्चर जो है उससे पाया गया कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स वगैरह के यूज़ से, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ एंड आर्टिफिशियल इरिगेशन वगैरह से काफ़ी इनपुट्स इंटेंसिव एग्रीकल्चर होने लगा, जिससे सॉइल की हेल्थ काफ़ी डिग्रेड हुई और अल्टीमेटली पर्यावरण पे भी काफ़ी असर पड़ा. बट जिस तरह की प्रैक्टिसेस डॉक्टर शर्मा ने बताई हैं, उनको जुडिशियसली अगर यूज़ किया जाए तो आई थिंक जो कमियाँ रह गई थी एग्रीकल्चर में जो हम प्रैक्टिस करते हुए, तो उसको काफ़ी हद तक वी कैन ब्रिज दैट गैप. सो आई थिंक ये बड़ा एक स्टिमुलेटिंग और एक चैलेंजिंग एरिया भी कहिए, क्योंकि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है और जो हमारा वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको यूटिलाइज भी करना है. सो आई थिंक इसको साइंटिफिकली डील किया जाए तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेफिनेटली अचीव किया जा सकता है. तो आई थिंक जो डॉक्टर दिनेश ने जो बताया है बेसिकली वो यही है कि व्हाट इज़ वेस्ट. सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वेस्ट क्या है. जनरली हम लोग सोचते हैं कि वेस्ट है तो टू बी थ्रोन, बट व्हाट डॉक्टर दिनेश हैज़ टोल्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वेस्ट दे आर मिसप्लेस्ड रिसोर्सेज. रिसोर्सेज मीन्स दे कैन बी यूज्ड. उसके बाद उन्होंने बेसिकली बताया है कि हाउ द वेस्ट दे कैन बी मैनेज्ड. वेस्ट को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी टेक्निक्स बताई हैं. दैट इज़ कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग, फर्टी इरीगेशन, एंड देन हाउ दिस वेस्ट वाटर इट कैन बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर. और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं बेसिकली इन इको फ्रेंडली वे. तो इको फ्रेंडली वे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमें अपना एनवायरनमेंट को भी डैमेज नहीं करना है और हमें अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को भी बनाए रखना है. एंड द थिंग इज इट इज़ नॉट ओनली फॉर टुडे, इट इज़ फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो. दैट इज़ द सस्टेनेबिलिटी. सो हमें अपने रिसोर्सेज को बनाए भी रखना है और उसको अपने फ्यूचर के जो जितने भी अभी आने वाले हैं उनके लिए भी हमें वो जो है चीज़ें अपनी रिसोर्सेज हैं उनको बरकरार रखना है. सो आई थिंक दिस वॉज वेरी वैल्यूएबल talk by Dr. Dinesh on this particular topic, and I think our students, they must have gained a lot of information because it was another thought provoking presentation also. And I really thank Dr. Dinesh for this valuable presentation, and Dr. Jaswant Sokhi, who is the coordinator